বজাত সমাচাৰ প্ৰভাত আৰু 8:15 মৰ্ণিং নিউজ আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পৰৱৰ্তী অসমৰ বাতৰিৰ সৈতে মই নিৰুপমা বৰঠাকুৰ। বায়ুসেনা দিৱস উপলক্ষে আজি গুৱাহাটীৰ ৰাজনাথ সিং আহিব বুলি খুব যা যোগাৰ কৰিলে এতিয়া নাই। 4:30 পৰা দিনৰ 2 বজালৈ এয়াৰ শ্ব অৰ্থাৎ যুদ্ধ বিমানৰ উৰণ কৌশল প্ৰদৰ্শন এইখনো বৰ ধুনীয়া কৰি দিলে দা লাইন দেখাই নাই। কৃপা বাদ্য এইটো ঢোল পাই কৰিছে অতি ডাঙৰ ঢোলৰ দোকান। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আৱাসীসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ সতীৰাধিকা উদ্যানৰ পৰা ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে এই ফ্লাইং শ্ব' চাব পাৰিব। জনসাধাৰণে সুবিধা অনুযায়ী নিজৰ ঘৰৰ পৰাও এই শ্ব'টো উপভোগ কৰিব পাৰিব। মহানগৰীৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অতিথিৰ বাবে এই এয়াৰ শ্ব' চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইপিনে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ 93 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে বৰঝাৰৰ সেনা চাউনীত বৰঝাৰৰ সেনা চাউনীত সেনা বাহিনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কালি গহপুৰৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। 115 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰযুক্তি আধাৰিত বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব। 731 বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা বিশ্ববিদ্যালয়খনত 2000 গৰাকী শৈক্ষিক ভৱন, 1620 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে হোষ্টেল, 72টা আৱাসিক ভৱন, অতিথিশালা তথা শিক্ষাৰ্থীৰ সা সুবিধা কেন্দ্ৰ থাকিব। লোকমান্য তিলক বুলি এখন বম্বেলৈকে চলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। চাইবাৰ সুৰক্ষা, কোৱাণ্টাম তিনিচুকীয়াৰ পৰা চলে। এইখনতে মিণ্টুদা গৈছিলে। 3D প্ৰিণ্টিঙকে ধৰি কেইবাটাও নতুন বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। আগৰ দাদৰ নহয় নেকি? দাদৰখন আছে, দাদৰখনে বেলেগ। এইখন ইয়াৰ পৰা যাবৰ কাৰণে দাদৰখন দাদৰলৈ যায়, এইখন কুৰ্লালৈ যায়। কুৰ্লাৰ টাৰ্মিনাছটোক লোকমান্য তিলক টাৰ্মিনাছ বুলি কয়। কুৰ্লাটো আকৌ বেলেগ জেগা, একদম ফাটি পেলাই বেলেগ এটা জেগাত আছে, গোলাঘাট টাইপৰ কুৰ্লাখন। ট্ৰেইনত 3.5 দিন ঝেলিব নোৱাৰি। ট্ৰেইনৰ আটাইতকৈ মানে এইটো ফৰ্মুলাই ভাল আৰু 32 ঘণ্টালৈকে ঝেলিব পাৰে মানুহ। টয়লেটকেইটা ইউজ কৰিব নোৱাৰোতো, তাৰ টয়লেটকেইটাইতো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিকালি ট্ৰেকত গু নপৰে ডাইৰেক্ট। সিহঁতৰ তাতে টেংকি আছে। এবাৰ নগা এটাই নতুন দামী মোবাইল এটা কিনি পেলাই এতিয়া চিটতো এৰিব নাই কৰিব বুলি পকেটত লৈ পেলাই হাগিবলৈ সোনকাল কৰি থাকিলে হ'বই আৰু। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত নিৰ্মীয়মান জ্যোতি বিশ্ব প্ৰেক্ষাগৃহ পৰিদৰ্শন কৰে। 5000 আসনযুক্ত প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে ই উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ প্ৰেক্ষাগৃহ হিচাপে ট্ৰেইন জাৰ্ণিটো ঝেলিব যদি পাৰে তাতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং জাৰ্ণি নাই আকৌ পৃথিৱীত। একদম মানে এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং, খালি গাটো ভাল হৈ থাকিব লাগে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। আজিৰ অনুষ্ঠানত নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 3800 গৰাকী আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 750 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ এই যে তোৰ চেকিং সেইবিলাক চেকিং কৰোঁতে একদম ছিকিউৰিটি চেক কৰোঁতে মজা ওলাই যায়। ট্ৰেইনত কৰে না? নাই নাই, প্লেইনত। ট্ৰেইনততো বাৰু প্ৰথমতে এক্সৰে দিব, এতিয়া গুৱাহাটীত এক্সৰে নকৰে। বম্বেত কলিকতাত বিৰাট ষ্ট্ৰিক্ট। তই বেগ লৈ তাত দেখুৱাব লাগিব ট্ৰেইনত। প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাই লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ৰীড়া চৌহদত 10 দিনীয়াকৈ এই গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰিছে। কালি গ্ৰন্থমেলাথলীত আয়োজিত কবি সন্মিলন সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট কবি জ্ঞান পূজাৰীয়ে উদ্বোধন কৰে। টয়লেটকেইটা এনেকুৱা লেতেৰা, মানে এই ৰাস্তাৰ পাব্লিক টয়লেটো মানে পাব্লিক টয়লেট তই ঝেলিব পাৰিবি, ট্ৰেইনৰ টয়লেটটো তই ঝেলিব নোৱাৰ। মানুহ যিকোনো মানুহৰতো কোনো হেৰিয়েই নাই, অতি মানে ঝেলিব নোৱাৰো।
NDRF তিনিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সন্ধানত এই 32 ঘণ্টাটো এটা মানে এটা ভাল টাইম লাইন আৰু সেইটোলৈকে ঝেলিব পাৰে মানুহে, তাৰপাছত পগলা হৈ যায়। সমৰ্থ হয়। মানিক দুপছা উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৌহাৰ্দ্য ৰায় আৰু বিহাৰৰ ৰাধিকা এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে। আমাৰ এতিয়া বাতৰি ইমানেই। জলপ্ৰপাত চাবলৈ গৈ পেলাই এইবোৰ হেৰি চাবলৈ গৈ মৰিলে। ঘৰ চালা কিমান লাখ টকা খৰচা কৰি পঢ়াইছে, হেৰি চাবলৈ গৈছে চালে, ঝৰ্ণা চাবলৈ গৈছে। এই লগৰ কোনোবাই ঠেলি পেলাই দিলে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मनुअल गोन्साल्वेज আমাৰ মানুহে ট্ৰেইন বস্তুটোৰ বিষয়ে গম নাপায়তো, সেইকাৰণে মানুহে বাহিৰলৈ নাযায়। তাৰমানে মানুহে ইয়াত যদি গম পালেহেঁতেন, আমাৰ মানুহে নাযায়তো, গুৱাহাটীলৈকে নাযায়। 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया। और शतरंज में विश्व चैंपियन डी मुकेश विजय विश्व कप से बाहर। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और अर्जुन एरिगेसी चौथे दौर में पहुंचे। रंगलाव बाजार। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड आज अपनी स्थापना की रजत हाँ? जयंती आसे? मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा वे पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़ी है। प्रमुख परियोजनाओं में अमृत योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ में विद्युत सब स्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र और हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी देहरादून की सौर बांध पेयजल परियोजना और नैनीताल की जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। सौर बांध से देहरादून को प्रतिदिन 150 MLD पेयजल मिलेगा। इसके अतिरिक्त चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र, এইটো মানে হেৰিটো গ্ৰীণটো, এইটো বেলেগ ৰঙালাও নেকি? এইটো आकाशवाणी खाले बोले गैस ना हो बोले। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 20 जिलों के জখলাবন্ধাত এইখন জেগা হোৱাহেঁতেন, তাকে ইহঁতি ব্ৰেণ্ডিং কৰিলেন। জখলাবন্ধাৰ এইখিনি বহুত সিহঁতি জানে আকৌ গোটেই মেনেজমেণ্ট। আমাৰ এতিয়া ৰঙালাও বজাৰখন চকুতে নপৰে। वरिष्ठ नेता कई रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सासाराम और अरवल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औरंगाबाद तथा कैमूर में 2 जनसभाओं আৰু এবছৰ লাগিব তাৰমানে, 2026 ডিচেম্বৰ মানত হ'ব। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद, गया तथा कैमूर में चुनावी इलेक्शन आगे ना हो। संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ अररिया, सुपौल और मधुबनी इलेक्शन आगे हो भाई। जनसभाओं में भाग लेंगे। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पूर्णिया और किशनगंज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता এই যে এদিনো ট্ৰেইন দেখা নাই আৰু এই ট্ৰেইন আলিটো। भभुआ में 11 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से बहुजन समाज पार्टी, AIMIM और अन्य दलों के स्टार प्रचारक भी आज अंतिम दिन धुआंधार चुनावी रैलियों, जनसभाओं और रोड शो में भाग लेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार एक रचनात्मक और सार्थक মানে সাংঘাতিক বালি মহল নেকি? जो लोकतंत्र को मजबूत करे और देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करे। चलो पैसा उठाए से मंत्री राम मोहन नायडू ने कल नई दिल्ली में एयर ट्रैफिक ये फॉरेस्ट एक्चुअली फॉरेस्ट मिनिस्टर जे कोनो का ये ताकई दिबो लगे पार्टी नाम संदेश प्रणाली में 6 नवंबर को एक तकनीकी खराबी आ गई थी। सब एक खबर है कांग्रेस लोग उड़ानों में देरी होने के बाद उन्हें कारण रद्द तो यहाँ करना तक पड़ा पावर था। लगे। श्री नायडू ने भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए विस्तृत विश्लेषण करने का निर्देश दिया। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में GST दरों में कटौती के बाद
22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फुटवेयर के क्षेत्र में नई जीएसटी दरें नागरिकों के लिए मददगार साबित हो रही है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने परिधान और फुटवेयर सहित विभिन्न उद्योगों में कर संरचना को सरल बनाया है। कंपोजिशन लेदर और टैनिंग या क्लस्टरिंग के बाद तैयार किए गए चमड़े पर लगाए जाने वाले कर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे निर्माताओं के इनपुट लागत में कमी आई है और देश के भीतर उत्पादन बढ़ा है। इसके अलावा 2500 रुपए तक के फुटवेयर पर वस्तु और सेवा कर को 5% कर दिया गया है। इस कदम से युवा निर्माताओं को सीधे लाभ मिल रहा है और उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद अब अधिक सुलभ हो गए हैं। ऋषु जायसवाल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। জালিম লোচনৰ এড প্ৰথম শুনিছোঁ। বহুত কোটি টকা বিজনেছ কৰে। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 2 देशों की राजकीय यात्रा के पहले चरण কোনোবা में গাঁওখনত গৈছিলোঁ একদম দেখিছোঁ জালিম লোচন। किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की अंगोला की पहली राजकीय यात्रा है। ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज राष्ट्रपति मुर्मू लुआंडा स्थित राष्ट्रपति भवन में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मनवेल गोंसाल्वेज लॉरेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इसके बाद दोनों देश आपसी हित के मुद्दों से जुड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में इस वर्ष मई में नई दिल्ली में हुई पिछली उच्च स्तरीय वार्ता को आगे बढ़ाने की संभावना है। साल की शुरुआत में जब अंगोला के राष्ट्रपति की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, तब भारत ने अंगोला की रक्षा आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी ऋण सहायता को मंजूरी दी थी। दोनों देश अभी इस समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा कर रहे हैं। इसके तहत अंगोला भारत से कुछ रक्षा उपकरण भी खरीद सकता है। अंगोला पहले से ही अफ्रीका से भारत को ऊर्जा देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहाँ नए तेल क्षेत्र की खोज से भारत को रिफाइनरी और तेल की खोज में अंगोला की मदद करने के अवसर मिल सकते हैं। भारत अंगोला को कृषि तकनीक और उपकरणों के जरिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने में भी मदद कर सकता है। इस दौरान दोनों देशों के बीच जिन अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हो सकती है, उनमें स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषय शामिल है। अनिश शिवा, आकाशवाणी समाचार, अंगोला। राष्ट्रपति मुर्मू यात्रा के दूसरे चरण में 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की বাংলাদেশৰ কি হ'ল এতিয়া যে বাংলাদেশৰ নিউজ ওলাই যে का लोकार्पण करेंगे। भारत और भूटान ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित ন এই যে আমাৰ পলাই আছিলে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। ইণ্ডিয়াতে আছে নি? प्रधानमंत्री श्री दिल्ली से मुलाकात करेंगे। डांगो श्री था। मोदी वैश्विक शांति प्रार्थना समारोह में हिस्सा लेंगे और थिम्पू के মানুহবোৰ এনেই ভালেই, শান্ত ইহঁতৰ কথা বতৰাবিলাক বৰ ভাল। বাংলাদেশী এইবাৰ মই হেৰি পাইছিলোঁ নহয়, ইহঁতৰ গোটেই বহুত ডাঙৰ কমিশনাৰেট নে কি আছিলে কিবা ताशी छोजोंग में स्थापित किया गया है। ये मठ भूटान की सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का केंद्र है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि ये अवशेष 8 से 18 नवंबर तक थिम्पू में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखे जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया কিন্তু বৰ সাংঘাতিক জেগা দেই, চাব লাগে মানুহে কেনেকৈ কটনা কাটি খাই আছে। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA को গৰিবী মানে এনেকুৱা গৰিবী নাই তাৰমানে। मर्यादा बनाई है। श्री गोयल বাংলাদেশৰ গৰিবী ক'তোৱে নাই তাৰমানে। হেৰিতকৈও সাংঘাতিক नाइजीरिया, फाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये बात कही। इस दौरान CECA वार्ता के अंतर्गत हुई प्रगति की অসমত যিহেতু একদম স্বৰ্গত আছে, व्यापार तथा आर्थिक সেইকাৰণে ইমান কষ্ট কৰে আকৌ, সেইকাৰণে ইমান ফূৰ্তিত থাকে। चर्चा हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की वार्ता पूरी हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि वार्ता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, आर्थिक सहयोग तथा उत्पत्ति के नियमों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी। दोनों पक्षों ने कहा कि
की चर्चा सकारात्मक रही और एक मजबूत, आधुनिक तथा संतुलित व्यापार साझेदारी के साझा लक्ष्यों को दर्शाती है। देश अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस गीत ने कई पीढ़ियों को एकजुट होने, उठ खड़े होने और राष्ट्र की भावना का उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया। आज हम बता रहे हैं कि वंदे मातरम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रज्वलित किया। वंदे मातरम गीत की शक्ति और जोश 1905 में जीवंत हुआ। इस दौरान ब्रिटिश राज बंगाल को विभाजित करने का प्रयास कर रहा था। स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हो गया था। इसमें वंदे मातरम सबसे प्रमुख और एकीकृत नारे के रूप में उभरा। ये सड़कों, स्कूलों और स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में गूंज रहा था। वंदे मातरम केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक ऐसा मंत्र था जिसने प्रदर्शनकारियों को एकजुट किया और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बन गया। इसी गीत ने भारत के लोगों में स्वशासन और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रज्वलित किया। 1905 में वंदे मातरम की जागृत भावना से प्रेरित होकर भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने उस भावना को कैनवास पर अमर कर दिया। उन्होंने भारत माता का प्रतिष्ठित चित्र बनाया, जिसमें भारत को एक देवी और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया। अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और लाला लाजपत राय जैसे महान दूरदर्शी विभूतियों ने भारत के लोगों से एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने और वंदे मातरम को स्वतंत्रता और आस्था के लिए आह्वान के रूप में इस्तेमाल करने का आग्रह किया।